अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड आज हम प्रोफेशनल वेबिनार सीरीज नंबर 41 के साथ हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वेबिनार सीरीज को स्टार्ट किए हुए 3.5 साल हो जाएंगे कंप्लीट इस नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह। एंड एज ऑलवेज वी केम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का टॉपिक है सेटिंग स्मार्ट गोल्स फॉर सक्सेस इन 2025। साल का स्टार्ट है और वी हैव टू बी स्मार्ट। हमारे गोल्स भी स्मार्ट होने चाहिए जिनको अचीवेबल हों, अचीव कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में हमने टॉपिक ये चूज किया। और आज के जो लर्नड स्पीकर्स हमारे साथ हैं, दोनों का थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें टाइम दिया। पहले स्पीकर हमारे साथ हैं उबैदुर रहमान चौधरी साहब, फाउंडर एंड लीड कंसल्टेंट द जीरो गैप। Ubaid Rahman Chaudhary Sahab is a positive coach and seasoned HR strategist with 17 years of dynamic experience across diverse industries. He specializes in talent management, organizational design, leadership development, and change facilitation. As the founder and lead consultant of the Zero Gap, an HR and business process consulting firm, he empowers organizations by crafting value-driven process maps, enhancing human capital system and aligning strategic objectives. His expertise includes setting up HR functions from the ground up, delivering transformational business process frameworks, and optimizing organizational structures for sustainable growth. Renowned for his strategic foresight, leadership example, and process-centric innovation, where consistently drives excellence with a collaborative and result-oriented approach. Best of welcome to SK webinar. Thank you so much for joining us. So thank और you for आज के having जो me. थैंक यू सो मच। और आज के जो दूसरे स्पीकर हैं अमजद इकबाल साहब के साथ काम करने का हमें मौका मिला है इसमें। और इज अ वेरी लर्नेड, वेरी सीनियर प्रोफेशनल, राइट, करंटली चीफ HR ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर HBL Zarai Services. Amjad Saab is a seasoned HR professional with expertise in organizational transformation, agile HR practices, and talent management across industries like telecom, IT, and finance. A certified SAP SCM and BPR consultant with credentials from Cornell, UC, Berkeley, and Wharton. He excels in restructuring, cultural transformation, and leadership development, aligning HR strategies with business goals. He is skilled in digital workplace solutions, process engineering, and employee engagement, driving impactful change through collaboration and innovation. Amjad Saab also specializes in leadership and succession planning, as well as designing competency frameworks to foster organizational growth. Amjad Saab, sir, thank you so much. Welcome to ASK webinar. Thank you, Farhan. Thank you very much. Thank you, sir. आज का topic, so welcome everyone to today's webinar on setting smart goals for success in 2025. As we step into a new year, many of us are eager to set fresh goals, whether personal, professional, or business related. But how often do we set goals that fizzle out within weeks? The key to long-term success lies in setting smart goals, goals that are specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Today, we have an incredible panel of experts who will help us understand the science behind effective goal setting, share practical strategies, and guide us how to stay motivated and accountable. Let's dive in. सर अमजद साहब, सर आपसे स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हमारी जो मेनली ऑडियंस है इसलिए कि एएसके का प्रोफेशनल सीरीज वेबिनार है, इसमें प्रोफेशनल्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स, सीजन प्रोफेशनल्स, और सेटिंग स्मार्ट गोल्स फॉर सक्सेस 2025। सर इस सिलसिले में प्लीज हमारी ऑडियंस को जरा गाइड करें अपने पर्सपेक्टिव से। सर आप म्यूट हैं, आप प्लीज अनम्यूट कर लें अपने मोबाइल। Yeah. Thank you, Farhan, and Assalamu alaikum, Ubaid, and the audience. You see, this is the right time to talk about performance, and then more specifically talking about objectives and goals. And as you, Khurram, rightly mentioned, this is the beginning. So as an individual, as a corporates, this is the high time that we set our target and start kind of tracking them and then navigating along the business progress moves on. You see, there are a couple of things that I'll speak first before jumping into the goal and smart goals. As an individual and more specifically as an organization, something that we need to understand first is the purpose. Why do we need to create smart goals? And what is that linkage between smart goals and the organization's priority? So if we, as an individual, as a consultant, as an organization, if we don't understand the purpose of a performance, overall performance enhancement mechanism, a performance management system, or a framework, whatever term you want to use that, you use that. But what is the purpose? Most of the times, our audience think of performance management as a kind of a reward that we give to our employees at the end of the process. And that's how we interpret. The moment
the term performance management or objective comes to our mind, immediate something that triggers is the reward. That's how we look at this complete. Whereas that's where the things go wrong. As an individual and as an organization, Khurram, we need to make sure that we set the right tone at the top. Um, Performance management as a complete philosophy, as a complete system, uh, in terms of priority, is there to track organization's performance, not individuals' performance immediately. So we need to be clear that our performance management, is it addressing to organization performance or not? And if it only addressing the reward part, which is the last in terms of priority, so this would mean that we are setting the wrong tone in the beginning, and therefore whatever objective are going to define later on are not going to be rightly directed. So whatever quality mechanism you apply will not help us achieve at the end of the day the organization priority or the purpose that we will set in the beginning for the organization where we are as of now, for example, based in. So from a priority point of view, performance management system has to target organization's priority, organization performance. Then it has to talk about and refer to the culture. A performance has to be seen as a culture, as a priority. And then in the third sequence, it is the development and motivation of employees. And the fourth level is where we nailed it down to the individual level, where we say that somebody has since performed great, so therefore he or she deserves to be appreciated and rewarded accordingly. So reward is the last in terms of priority or a strategic objective of a performance. So we need to have a clear lens that how we as an individual are, how we as an organization are looking at performance mechanism as a whole. So if we are rightly looking at the performance, only then will trickle down to the right area, which is the targets and objectives. Now, you understand, we all understand as a professional, there are a number of methodologies currently being deployed to manage performance. We have heard about OKR, we have heard about balanced scorecard, kisi zamane mein we have heard about management by objectives. All those are the right methodologies to implement performance culture, performance framework in the organization. Let's not talk about which one is right or which one is not right or relatively less right, because it varies from organization to organization, the maturity of the organization, and you carry forward. So therefore, which tool or methodology is to be applied is again depends upon the maturity of the organization, and the maturity of the audience within the organization implies the line management, people who are involved, part and parcel to the process, how mature are they? So that is going to determine the methodology. And the last point, yes, sir. Last point before I move on, there has to be strategic clarity in terms of organization, and then we bring in that clarity to the individual level so that individual starts talking about smart objectives. So these are a couple of points which I wanted to share to begin with, because that's where you set tone in the beginning. थैंक यू सो मच सर. और आई स्टिल रिमेंबर ओल्ड डेज जब OGSM के ऊपर वर्कशॉप्स होती थी कि हाउ टू यू और लाइक आप गोल्स कैसे सेट करेंगे ऑब्जेक्टिव से मैच करते हुए. वैसे साहब आपकी तरफ आते हैं, प्लीज अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कीजिए हमारे ऑडियंस को. अच्छा सर, मैं आई विल बी टेकिंग अ मल्टी प्रोंग अप्रोच. अमजद साहब मेरे सीनियर भी हैं और मेरे मेंटोर भी हैं इन अ वे, सो ही इज़ वेरी राइटली पॉइंटेड आउट फ्यू वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स. मैं इसमें ना मल्टी प्रोंग अप्रोच लूंगा कि एक तो आप बात करते हैं द बिगनिंग ऑफ द ईयर, हम कंपनी के टारगेट सेट कर रहे होते हैं, कंपनी के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हम सेट कर रहे होते हैं. बट देखें, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के भी गोल्स को सेट करें. उबैद जिस इदारे का पार्ट है, जिस इदारे में काम कर रहे हैं, वहां पर काम करना और उस इदारे की जो, जैसे सर ने कहा, अमजद साहब ने, कि क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स उस इदारे के ऑब्जेक्टिव्स को सर्व कर रहे हैं, डू आई इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर्म पार्ट ऑफ दैट रनिंग सिस्टम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वर्क विद. एक चीज. और दूसरी चीज ये है कि इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी एज एन इंडिविजुअल, एज उबैद, इन माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, उसमें भी मेरे कुछ गोल्स होने चाहिए. अदरवाइज देयर इज ऑल लाइकलीहुड के यू स्टार्ट वॉन्डरिंग अराउंड आप एमलेसली. अच्छा, पहले मैं लूंगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को. अच्छा, एक जो मैंने अपने तकरीबन 16-17 साल हो गए डिफरेंट इदारों में काम किया, सो द बेसिक गैप दैट आई noticed in the goal setting exercises is it is unfortunate that in most of the companies it is happening as a siloed practice. वो होता क्या है कि साल के शुरू में एक हमने पेपर वर्क पूरा करना होता है मैनेजमेंट को या बोर्ड को प्रेजेंट करने के लिए कि जी ये हमने गोल सेट कर लिए हैं. तो टॉप मैनेजमेंट से एक डायरेक्टिव आता है कि ओके जी सब अपने अपने KPI सेट करके जो है ना वो सबमिट कर दें.
अब वो केपीआई सबमिट करने में होता ये है कि फाइनेंस के केपीआईज जो हैं वो ईस्ट में जा रहे हैं, एचआर के जो है वो नॉर्थ वेस्ट में जा रहे हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज गैप। वो पूरा एक जो ऑर्गेनाइजेशनल आपका एक कह लें कि कैनवस है, देयर इज अ ह्यूज गैप इन दैट कैनवस, और उसमें वो जो पूरी जिक्सॉ पजल है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके एक प्लॉट पूरा करते हैं, दैट जिक्सॉ पजल इज ऑल क्लटर्ड। सो एवर सिंस आई एंटर्ड इनटू दिस कंसल्टिंग थिंग, जो तकरीबन 1.5 साल पहले आई इनिशिएटेड द जीरो गैप, तो इसमें जब मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू किया तो आई आई टुक इट फ्रॉम द टॉप। सो आई सैट विद द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और द डायरेक्टर ऑपरेशंस, और मैंने उनसे कहा कि सर सबसे पहले हम आपके जो है ना वो गोल सेट करते हैं, एंड देन वी विल कैस्केड दिस टू योर मैनेजमेंट टीम। फॉर एग्जांपल, अगर डायरेक्टर ऑपरेशंस या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के जो गोल्स हैं उसमें 25% ऑफ द चंक इज फॉर मैनेजिंग इफेक्टिव एचआर, तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का वो 25% सीएचआरओ का या हेड ऑफ एचआर का 100% बन जाएगा। ठीक है, एंड लाइक वाइज इट इज कैस्केडेड। इसी तरह सीएचआरओ के 3-4 चंक्स होंगे, वो 25% तमाम सेक्शन हेड्स में, जैसे टैलेंट एक्विजिशन है या ओडी है या बिजनेस पार्टनरशिप है, तो उसमें वो उनका 100% बन जाएगा। सो दैट्स हाउ इट्स कैस्केडेड। और इसका जब आप एक कलेक्टिव इम्पैक्ट लेते हो अपवर्ड्स, तो इन तमाम लोगों के जो केपीआईज या गोल्स हैं, दे शुड फॉर्म पार्ट ऑफ वो सीईओ का जो एक पूरा फ्रेमवर्क है वो, दैट्स हाउ इट इज जस्टिफाइड। अच्छा, ये एक इट वाज अ ब्रीफ ऑन द, मतलब एक मेरी जो पर्सनल लर्निंग थी आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटिंग। दूसरा है सिर्फ पर्सनल गोल सेटिंग। अच्छा, ये एक बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। इसमें आई हैपन टू वर्क विद लॉट ऑफ मेंटोर्स इन लास्ट ओवर अ डेकेड और सो। इसमें इसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है मेरे नज़दीक जितनी आपकी प्रोफेशनल और आपकी वर्क प्लेस गोल सेटिंग की है। ठीक है, क्योंकि उबैद एक सोशल स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, माई सेल्फ, ठीक है, इसी तरह आप खुरम साहब हैं, अमजद साहब एंड ऑल आर पार्टिसिपेंट्स, वी आर पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। और हम एक किसी ना किसी रिलीजियस फेथ को भी फॉलो करते हैं फॉर वट एवर इट इज। ठीक है, हमारे कुछ स्पिरिचुअल गोल्स भी होने चाहिए, हमारे कुछ फैमिली गोल्स होने चाहिए, हमारे कुछ सोशल गोल्स होने चाहिए। सो आई टुक एन अप्रोच के मैंने जो OKRs का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एकेडमिकली, मैंने उसको पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर दिया। सो आई स्टार्टेड सेटिंग, या मैं अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग पर्सनल स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स विद द की रिजल्ट्स इन माय पर्सनल लाइफ, जिसमें मैंने अपने मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच लिया, फेथ, फैमिली, हेल्थ, सोशल सेटअप, और वो तमाम इन चीज़ों को हमने सेटअप किया। एंड देन एक मेन ऑब्जेक्टिव दैट वाज रिवर्स इंजीनियर्ड इनटू चंक्स, जिसको के फॉलो करना मेरे लिए आसान हो। और उसमें जो मैंने अप्रोच ली, जो मैं आई क्विकली रैप अप नाउ, के 4 से 5 पॉइंट्स हैं फॉर माय ऑडियंस टू केटर। सबसे पहली चीज ये है कि वेन एवर यू आर गोइंग फॉर योर पर्सनल गोल सेटिंग, यू शुड ऑलवेज हैव अ मेंटोर। अपने मेंटोर के साथ इन पर्सनल कोचिंग आप काम करें, वन ऑन वन कोचिंग पे काम करें। योर गोल सेटिंग हैज टू बी वेरी स्ट्रक्चर्ड। आप उसको अनस्ट्रक्चर्ड वे में या क्लटर्ड वे में लेकर नहीं चल सकते। Third point is attention to detail is very important. Minutest of the details are important. Do not forget to document your goals. Documenting your goals is of utmost importance. और आखिरी पॉइंट ये है सर कि अपने आप का आपको खुद ऑडिट करना है। आज आप साल के शुरू में अपने गोल सेट कर रहे हैं, फैसिलिटेट योर सेल्फ इन सेटिंग योर गोल्स, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर यू शुड बी योर सेल्फ ऑडिटर। अपने आप का सेल्फ ऑडिट करें ताकि आपको पता चले कि आपकी कारकर्दगी क्या रही, एंड दिस विल फॉलो द सेम पैटर्न जैसे आप कंपनीज में गोल सेट करते हैं। सो द फ्यू सेंट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच वैसे, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा क्लियर और बड़ा इंपॉर्टेंट आप दोनों ने इस चीज़ को डिफाइन किया कि ये सारी चीज़ें मिल के बनती हैं, और डेफिनेटली खासतौर पे जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से काम करें तो इस हद तक आपको प्लान करना होता है कि आप वेकेशंस कब लेंगे, सिस्टम्स क्या होगा, आप टीम है उसकी, उसके किस किस मौके पे किस किस और कैसे गोल्स इकट्ठे मिलकर अचीव करेंगे। आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अब जैसे स्मार्ट फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंडिंग द स्मार्ट फ्रेमवर्क एंड इट्स रोल इन गोल सेटिंग, या गोल सेट कैसे करें, कैसे स्मार्ट गोल्स की हम बात करते हैं और बड़ी है, तो स्मार्ट फ्रेमवर्क को हम कैसे डिफाइन करें और कैसे गोल सेटिंग्स को मिक्स करें उस चीज को, ताकि हम एक इफेक्टिव गोल सेट करें स्मार्टली, जो हमारे काम की तरफ लेके जाएं, समराइज हो। इसको थोड़ा सा प्लीज अगर Good point. Param, let me
let me add a bit to that. जो जिस तरह मैं अभी शुरू में बात कर रहे थे and Ubaid has rightly pointed out actually individual as a individual goals and then the organization from an organization's point of view. जब भी आप गोल की बात करते हैं तो if that goal or objective is not there to kind of motivate you to get into that, would mean that goal is not going to be achieved or the objective is not going to be achieved. So whenever we use these terms, smart, and there are so many other terms, fast approach, smart approach, all these approaches, the essence behind these approaches is to create how to create motivation within a goal or within an objective, right? So if I have set a target for myself and if there is no motivation, obviously that target is not going to be achieved. But how can we make sure that it remains attractive and it is there to make sure that I put in the max in terms of my contribution, so that after a certain time period, whatever is that time period, 3 months, 6 months, a year down the lines, I'm there in terms of my approach, I'm there in terms of my achievement level. So to make an objective more motivated, to make an objective more in terms of my development, then you need to look at what are some of the parameters that are important for us. For example, जिस तरह आपने smart की बात की, so अगर वो specific objective है, which means we need to be clear, उसकी हदूद define होनी चाहिए कि यार ये specific focus area जो मैंने achieve करना, it cannot be little ambiguous, जिसमें मुझे पता ही नहीं है कि मैं step 1 लूंगा तो whether that step 1 is going to be considered as my achievement या step 3 is going to be considered my achievement. So what is going to be interpretation of that specific to my context and to my objective? आपने मोटिवेशन की बात की, क्या उसके अंदर अट्रैक्शन है? Will that goal make me every day up in the morning and move into that and go and contribute to that? Is there any inner intrinsic value that I see? Because अगर वो होगी तो I'll put in the max. अगर उसमें intrinsic value नहीं होगी तो आपके कहने पे, बॉस के कहने पे, I may be putting some effort, but वो दिल से नहीं हो रहा होगा, वो होगा half-hearted attempt. So again इसके अंदर मोटिवेशन का एलिमेंट नहीं होगा. क्या वो लॉजिकल था? क्या वो ऑब्जेक्टिव उतना था कि अगर मैं इफ आई वुड हैव पुट इन द मैक्स, अगर पीक परफॉर्मेंस में देता तो क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पता है ना पता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आई हैव सेट एन ऑब्जेक्टिव व्हिच इज नॉट अटेनेबल. तो अटेनेबिलिटी पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इसी तरह रेलिवेंट टू द कंटेक्स्ट. ऐसा नहीं हो कि मैं और आप फॉर एग्जांपल नॉर्थ में मूव कर रहे हैं, पर चले मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया साउथ में जाने का, सो उसकी रेलिवेंसी भी है उस कंटेक्स्ट में, उस बिजनेस एनवायरनमेंट में कि नहीं. And usually the last point, which is the progress or tracking, क्या वो objective set करते हुए are you in a position to figure out that where are you after 2 months time period, after 6 months time periods? Is there any reference point that can figure out and know that are you moving in the right direction and in the right pace, and have you achieved something which you defined? For example, आपने कहा था कि एक महीने में मैं 10% अचीव करूंगा, तो have you achieved 10%, or you remain 9%, or you have overachieved maybe 11%? So now that reference point is important, because reference point also motivates you and it keeps you up and running, in terms of moving in the direction. So all these approaches, whether this is a smart approach, and I've learned about another approach which is called as a fast approach. Fast approach says that there has to be because fast approach is more towards a startup kind of an environment, which would mean frequently changes, that you should assume that there is going to be change while on the move. Always 10, 15, 20% जो है ना, जो total targets होते हैं उसका there is going to be a change. Maybe Q1 में environmental changes आए, I need to revisit my goals. So frequency of the change, frequency of upgrading that goal. Then there is an ambitious, how kind of a moon chart that you have drawn for yourself. उसमें ambition कितना था, कितना आपका उसके अंदर एनर्जी जा रही थी in terms of your motivation. इसी तरह specific की बात भी हमने कर ली. And then the last is transparent. How transparently we have defined so that everyone in the team and in the extended teams understand that this is the target that department A has set or Mr. A has set for their team members. So in terms of transparency, in terms of specific, in terms of ambitious, in terms of frequency, these are four kind of terms being used for a fast kind of approach, which is applicable for the startup business. But for a business which is more stable, which is more sustainable, जो पिछले 10, 15, 20 साल से चल रहा है, for them you usually approach this other one, which is smart approach. So again, objective or the essence behind these approaches is to make that objective more motivating, more attractive, more for their development purpose, so that everybody then contributes, chips in,
and in the return, individual also learns and company also grows. थैंक यू सर। सो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिसको आप कर सके। वैसा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग प्रोसेस एंड एडजस्टिंग गोल्स एज नीडेड, जैसे अमजद साहब ने बड़ा राइटली बताया कि आप अचीव कहाँ कर रहे हैं, आप उसको रिव्यू कैसे कर रहे हैं, मेजरेबल कैसे कर रहे हैं। तो ट्रैकिंग प्रोग्रेस और एडजस्टमेंट ऑफ गोल्स व्हेन एवर नीडेड, इफ देयर इज समथिंग एट टाइम्स, देखें आप अपने फुल कॉन्शियस के साथ, फुल फोकस के साथ गोल सेट करते हैं, टाइम्स थिंग्स चेंज, आप अदर फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो कैसे उस ट्रैकिंग प्रोग्रेस और एडजस्टमेंट ऑफ गोल्स wherever needed based on the रियल, इसलिए क्या बहुत देखें, मतलब एक वो जमाना भी था, बल्कि अभी कहीं पे हम डायनामिक बजट्स बनाते थे। हम बजट्स बनाते डायनामिक थे इसलिए क्या पता था कि वो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अदर फैक्टर्स के ऊपर रिलाय करते हैं। और बीइंग अ फाइनेंस पर्सन तो हमने बहुत देखा, हम तो देखा करते थे स्टेट के बाद में जाके पता चले। और सबसे पहली चीज हमें ये कही थी कि आपने साल के आखिर में जाके पता चला कि आप अचीव नहीं कर सके तो उस चीज को फायदा बेकार है। बेहतर है कि उस टाइम पे आप उस चीज को जज करें जिस टाइम पे आप एटलीस्ट करेक्टिव मेजर्स कर सकें। सिमिलरली हम गोल्स की बात करें, ट्रैकिंग प्रोग्रेस और एडजस्टमेंट ऑफ गोल्स व्हेन नीडेड, इसके ऊपर प्लीज। अच्छा सर, एक चीज मैं ऐड करता चाहूंगा। देखिए, चीजों को हमें ना फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। देयर आर सर्टेन फ्रेमवर्क्स दैट हैव बीन डिफाइंड, बट उसमें हम ना चीजों को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट के अंदर जो एस है ना, आई टेक इट फॉर स्ट्रेचिंग, कि जो भी मैं गोल्स अपने लिए सेट करूं वो बिल्कुल स्पेसिफिक तो होने चाहिए, बट दे शुड बी स्ट्रेचिंग ऑल्सो। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर आपने अपने लिए पर्सनल हेल्थ एंड फिटनेस का कोई गोल सेट किया है, आप 10 पुशअप आज कर सकते हैं। सारी जिंदगी 10 पुशअप्स पे आपको नहीं रहना। सो आपका इस साल का जो गोल होना चाहिए, इसको दैट हैज टू बी अ लिटिल स्ट्रेचिंग, ताकि आपकी जो मोटिवेशन है एंड योर कनेक्शन टू द ग्रोथ, वो आपकी जो है ना इंश्योर्ड रहे। सो इस साल के लिए आपको अगर सेट करना है तो यू शुड बी सेटिंग के जी मैं इस साल में अपने आप को इंप्रूव करूंगा सो दैट आई कैन डू एडिशनल 5 पुशअप्स और 10 पुशअप्स। तो एक तो एस के अंदर जो है ना, आई आई वुड से कि हमें इसको स्ट्रेच वाला जो है ना, कि आप अपनी लिमिट्स को और एग्जिस्टिंग जो आपकी बाउंड्रीज हैं उनको स्ट्रेच कर सकें, उनको खींच सकें, अपने आप को जरा कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। आज हम जिस टाइम पे रह रहे हैं ना सर, द फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। यू कैन नॉट स्टे हार्ड बाउंड टू वन थिंग। आपने बस ये कर लिया है। अब देखें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट के जो गोइंग बाय बुक है ना, वो शायद ब्यूरोक्रेसी में तो इंपॉर्टेंट होगा, बट कॉर्पोरेट में सर दैट्स नॉट डिजायर्ड। सो यू डू नॉट गो बाय द रूल्स, यू गो अराउंड द रूल्स। ठीक है, आप जो रूल्स आपने सेट किए हुए ना, कि मतलब कॉमा फुल स्टॉप उनके ऊपर, सो उनके ऊपर आपको यू कैन गो अराउंड द रूल्स। सो अब जो फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट योर सेल्फ विद द चेंजिंग नीड्स इज एसेंशियल। और ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी सर कैसे आती है? ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आएगी व्हेन यू हैव अ नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग। ठीक है, एक चीज ये हो गई। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था अबाउट ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। अच्छा देखिए, जो ट्रैकिंग द प्रोग्रेस है, दैट इज एज इंपॉर्टेंट। आपको आज ये पता है कि आपने ट्रेवल करना है फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। नाउ यू नीड टू ट्रैक आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, आपको इस वक्त क्या करना है, आपको इस वक्त आगे कितना सफर आपका बाकी है। आर यू ऑन द ट्रैक? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने रास्ते में मोटरवे छोड़कर किसी ऑफशूट को पकड़ लिया था एंड यू लॉस्ट द वे ऑन द वे। ठीक है, तो जो ट्रैक है आपका, इसीलिए मैंने कहा कि जो आप जिस वक्त आप एक मेंटोर के साथ अपनी गोल सेटिंग प्रैक्टिसेस में जाते हैं, तो द मेंटोर एक्चुअली टीचेस यू कि आपने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करना है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई यूज द वर्ड बीइंग एन ऑडिटर ऑफ योरसेल्फ, कि आप अपनी प्रोग्रेस के और अपने जो गोल्स हैं उनको आपको खुद ऑडिट भी करना है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, and then tracking your own progress. This is I think, without this the goal setting practice is incomplete. That's entirely incomplete. सो मच। अभी साहब, एक चीज बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि लोग अब एक एक्सरसाइज करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद पार्ट था, भी डेफिनेटली होंगे कि हम ओजीएसएम वर्कशॉप्स करते थे, मिल बैठते थे, गोल सेट करते थे। देयर आर सर्टेन कॉमन मिस्टेक्स, मतलब अगर आपने गोल गलत सेट कर लिया
मुझे आज भी याद है, मैं जब बीकॉम कर रहा था तो हमारे एक कॉलीग होता था, जैसे हमारे साथी था, तो उसने हम सब अभी किताबें ख़त्म नहीं कर रहे थे अभी, मतलब हमने अभी 25% जो है वो काम किया था, तो उसने कहा जी मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी किताब ख़त्म कर ली है, रिवाइज भी कर ली, तो पता चला सब कुछ गलत था। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कॉमन देयर आर मिस्टेक्स, गोल सेट ही गलत कर पाते हैं, तो किन चीजों को नजर में रखना चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्टिव्स तो क्लियर है, या चलें आपको पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है या आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, मगर किस तरह उस चीज को टेक केयर किया जाए कि हम इस चीज को, मतलब जितने पॉसिबल है, जो आपने बताया था कि रेगुलरली हम उसको फॉलो अप करें, कोई मिस्टेक होगी किसी वजह से, कोई ऐसा एलिमेंट है हम अचीव नहीं कर पा रहे, उसको मॉनिटर करना है। वैसे आपने ऑडिट का लफ्ज यूज किया कि सेल्फ ऑडिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर जब हम गोल सेट कर रहे होते हैं, जैसे अभी 2025 के जनवरी में हमें, जनवरी खत्म हो रहा है, तो किस तरह सोचे, किस तरह उन चीजों को लिंक करें, टेस्ट कर लें कि कैसे, ताकि हम गोल्स में कोई बहुत बड़ी गलती ना कर जाए। बिल्कुल सही है। सो गुड पॉइंट। the central to this complete philosophy जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, of everything is the dialogue, is the conversation. मैं और आप बैठे हैं, we need to start discussion in terms of our priorities for 2025 or 26. And somebody has to list down in whatever form, but there is no condition that you need to narrate a complete paragraph. If it is a bullet form, keep it in a bullet form. If you want to narrate a complete story, narrate a story. But the conversation has to happen, number one, and this conversation has to happen more frequently. It is not that you just get into conversation the first month and then you may recall conversation the last month. No, not at all. Conversation has to happen almost on a daily basis and a little formal on a monthly basis. That is where you say that you need to have a one-to-one and every month, at least minimum every month, formally. Every day you meet, you discuss, you share, but that is kind of a informal, taking all things along. But on a formal basis, on a monthly basis, there has to be conversation. Where are we heading? What was the original decision and where are we heading? Right? So this conversation is the central when we talk of the quality of our goal. And you are actually referring to how to set the right quality so that we should not go here and why. So to achieve that quality piece, conversation is the center. Now let me unfold the rest of the technical parts. Once we are sure that we are into conversation and we are discussing the right things, at least right concepts for that matter, because discussion has to open from a broader perspective. So once we are sure that we are discussing the right perspective, then you gradually zoom in and break that broader concept into small pieces. And that's where you become a little technical in terms of goal setting, right? So for example, something that we defined for us in my earlier organization as a guideline, that every individual whom we call as a people manager, and because he or she has to manage number of people in the team, he has to make sure that he will define 4 to 6 objective at max. Now, setting 4 to 6 objective is a technical point. If you ask people, they will narrate maybe 10, 15, 20 objectives for this year, but that is not the objective. They will put every damn daily activity as an objective. No, every activity cannot be objective. Objective is something which is of material in nature. So therefore, material item that you would target for a one financial year cannot be more than 5, 6 or at max 7, right? So limiting people to focus on the more central core is number one criteria, which is the number. As a company, our guideline is that we will not have we'll have more 4 to 6 objective. That is it. So this is one technical which is going to help you in terms of setting the quality. Number one. Number two, you need to also guide people that those 4 to 6 objectives must have at least one objective with regards to your team, maybe 4 or 5 or 3 with regards to core task that you're assigned, the job description that you're hired for, and maybe one more component depending upon the nature, but on HEC side, as an example, or ESG side. Okay? So you draw the outline for defining the objective. That yes, you need to have a 6 objective at max, but within those 6 objectives, the kind of composition you need to have is minimum 3, which is with regards to people, with regards to your job description and the core task, and maybe on HEC side if that is required. Now, what you're doing is nailing down. You're actually squeezing your quality and improving your quality by focusing on certain things. There is another dimension to that. And that dimension says that if you're defining, for example, 3 objectives which are more specific to your job,
Out of those three, one has to be transformational nature objective. Again, not a routine activity, but the transformational, which is there to create value for the department, not only just for you, for the department. And the other two will be maybe operational or strategic in nature. So you add another dimension in the quality, in terms of the nature of the job, which is transformational or the strategic or an operational nature, right? And then there is another dimension that you can, again, it depends how mature are you. For example, the most mature setup will go for another dimension, and that dimension is the kind of indicators, the original question that you ask from, say Obed, the kind of indicator that we need to apply. How many of them are going to be based on leading indicator, and how many of them are going to be based on lagging indicator? So these are 4 or 5 different dimensions that one has to be cautious of and aware of and educated for that matter before defining objective for himself or herself and for the rest of the team. So ये बड़े important characteristics होती हैं. अगर हम ये miss कर जाते हैं तो at the end of the day, whatever you'll end up, we'll have a list of all the routine activities that we do, and then we will be claiming that my objectives are set and everybody is there. No, that is not the objective setting exercise. That is more of a discussion, and that's it. So to be more conclusive, these 4 dimensions are going to help you in terms of improving the quality of objective. थैंक यू सो मच अमित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसा आपने ये बात की कि पर्सनल गोल्स और इन सबको मिला के चलना है। हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ डिसिप्लिन, हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ डिसिप्लिन रोल प्ले इन अचीविंग योर गोल्स, सेटिंग एंड अचीविंग? सर, टॉपिक वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सेल्फ डिसिप्लिन। जीरो गैप के साथ ना, जो कंपनी का नाम है ना, सबसे पहली चीज मुझे बार बार हो रही थी कि दिस इज पॉइंट, ये कितना इंपॉर्टेंट है। चाहिए जीरो गैप जब ही आता है जब सेल्फ डिसिप्लिन हो। देखिए, डिसिप्लिन जो है ना सर, मैं अपनी क्लाइंट्स के साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी करता हूं, और व्हेन एवर आई कंडक्ट स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं हमारे स्ट्रेटजी सेशंस होते हैं, उसमें भी डिसिप्लिन का ना मैं एक्रोनिम यूज करता हूं। मैं उसको यहाँ भी लिख भी दूंगा चैट बॉक्स में फॉर द नॉलेज ऑफ जनरल ऑडियंस। डिसिप्लिन जो है ना, मेरे नज़दीक ये वो इम्पोर्टेंस है जो जिसके अंदर, जब मैं इसके फैक्टर्स आपको बताता हूँ कि एज एन एक्रोनिम जब मैं इसको यूज करता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। सो अब देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, अपनी जिंदगी का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। पहले मैं आपका क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट उसको आंसर कर देता हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए सर, मैं अपनी जिंदगी के लिए, आप अपनी, और हम सब अपनी अपनी जिंदगियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स आके, कोई निजात दहिंदा आके हमें जो है ना वो नहीं बचा सकता, हमें जो है ना वो कोई गाइडलाइन नहीं दे सकता। आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो आपको सिर्फ बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू, मतलब एक एक ट्रैक आपको कौन सा लेना चाहिए अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। अब वो जब ट्रैक आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके ऊपर चलना आपने खुद है, और वो चलने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी वो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है। अपने आप को खुद आपने डिसिप्लिन करके चलना है। पीपल कैन गाइड यू बट नो बडी कैन एक्ट ऑन योर बिहाफ। नो बडी, अभी आपको अगर फिजिकल फिटनेस की बात है तो आपको जिम खुद जाना है। समबडी कैन टेल यू कि इस एक्सरसाइज को आप इस तरह से कर लीजिए, आप ये किताब पढ़ लीजिए तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बेहतर हो जाएगा, बट वो किताब एंड ऑफ द डे आपने खुद पढ़नी है, उस रास्ते पे आपको खुद चलना है। सो द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू टू डू इट इज योर सेल्फ डिसिप्लिन। आपको खुद अपने आप को चलाना पड़ेगा, ठीक है। सो डिसिप्लिन जो है, जब हम इसकी बात करते हैं तो डी वुड स्टैंड फॉर डिवाइन कनेक्शन। यू शुड स्टैंड कनेक्टेड विद डिविनिटी, ठीक है। विच एवर रिलीजन, विच एवर फेथ यू बिलोंग टू, रिगार्डलेस, आपको अपनी जो अपना डिवाइन कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इसको वेस्ट में जो है वो हायर सेल्फ भी कहा जाता है, इसको डिविनिटी भी कहा जाता है। हम जब रिलीजन के हिसाब से बात करें तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन जो है उसको स्ट्रेंथन करें। सो आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन, डू इंट्रोस्पेक्ट अलॉट, आप अपने अंदर झांक कर देखें, ठीक है। सी स्टैंड्स फॉर कंटेम्पलेशन, ठीक है, आप कंटेम्पलेट कीजिए। ये कंटेम्पलेट करना जो होता है ना, ये अपनी आंखों में आंखें डाल के खुद को समझाने का भी एक तरीकाकार होता है, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, ये सेल्फ ग्रोथ, ठीक है। सो इसके ऊपर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आप खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। इसी तरह ये पूरा फ्रेमवर्क मैंने एक डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर के मतलब ऑब्वियसली जो है ना वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सो आई विल राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स।
तो डिसिप्लिन जो है इसको फिर मैंने एक दफा बैठ के पूरा डिफाइन किया था कि फॉर मी व्हाट डिसिप्लिन मींस। सेल्फ डिसिप्लिन ये वो फोर्स है जो आपको खुद अप्लाई करनी है खुद को बेहतर करने के लिए। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। आप म्यूट है सर। सॉरी जी, अमीर साहब एक क्वेश्चन आया है मोहम्मद इम्तियाज साहब का। कैन वी कनेक्ट स्मार्ट to some smart goals to some performance management model, and how it would be tracked? Okay, so जी खुरम, let me add a bit to the earlier one, which is जी जी, प्लीज discipline. प्लीज 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 फील फ्री। उसके बाद मैं इसकी तरफ आता हूँ। उबैद ने बड़ा बड़ा स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया कि डिसिप्लिन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। Now I'll add more on the same lines when we talk of implementing these performance or smart approaches. You see, putting discipline around is actually the culture. So if you miss the culture piece, you miss the essence of whatever you implement. परफॉर्मेंस के अंदर भी यूजुअली हमने बचपन से क्या देखा होता है को साल के शुरू में जो ऑब्जेक्टिव सेट हो गया और साल के बीच में एक मिड रिव्यू हो गया, एंड यू नो वंस यू आर डन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो अब कहते हैं वो इवैल्यूएशन हो गई और उसकी बेस पे मुझे ABC रैंकिंग मिल गई एंड रिवॉर्ड हो गया। हमारे जहन में परफॉर्मेंस के कंप्लीट साइकिल में दिस इज द ओनली डिसिप्लिन दैट वी हैव इन आवर माइंड कि शुरू में गोल सेट करने हैं, दरमियान में रिव्यू होगा, आखिर पे इवैल्यूएट होगा और फिर हमें रिवॉर्ड मिलेगा। Now, this is also a discipline, but this is the weakest in terms of the discipline that you talk about or the culture that you talk about. There is much more to that. And if we will miss that, the bigger, much more that I'm referring to would mean that we will not end up having the quality output, the quality output coming out of this performance system. So he's absolutely right. Without discipline, putting across performance cycle, we will not be able to, our organization cannot be in a position to achieve whatever they want to achieve. So therefore, discipline is the essence, which would mean I'm saying culture is the essence. So performance culture has to be there, and culture only comes once you are sure that you're doing things in a disciplined manner. You are ensured that every month you will be conducting meeting with your teams, and your boss will also be conducting meeting with you. So that monthly meeting is a discipline, putting a discipline across the performance. So that's the importance of a performance and the discipline and the culture जो कि collectively एक जाता है। आपका जो क्वेश्चन था या मेरे जो कोलीग का क्वेश्चन था कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स को क्या परफॉर्मेंस में ट्रैक करना था, कैन यू प्लीज एलैबोरेट? वो था क्या, दोबारा से पढ़ें जरा पूरा सेंटेंस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से can we connect smart goals to some performance management model, and how it would be tracked? Absolutely. देखें, when we say performance management model, तो in the beginning I referred to 3 models. सिंस मैं खुद भी प्रैक्टिशनर हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसलिए मुझको एक्सप्लेन करना आसान है। इसे लुक, there are large organizations which are more pro, not all but few, more pro towards balanced scorecard. Now, balanced scorecard is a methodology. Balanced scorecard is a methodology to track performance of an organization. Balanced scorecard is a methodology to present organization strategy to others, right? So it's a model, complete model. And while staying within this model, then you reach to the nth level, which is objective setting. And objective setting is one of the components within balanced scorecard. And similarly, it is OKR as well. So OKR is a broader methodology, which is objective key result. Similarly, the moment you zoom in into objective, obviously you need to be clear that what sort of objective you're defining for yourself. Is it a short term or a long term, moonshot or a short term approach objective? So all these smart objectives are part and parcel to some broader performance management model. So it is also embedded. It is embedded within that. It cannot be seen as an individual. Just for the information, there was once, I think this was somewhere in 70s or 60s, SMART itself was a methodology. It was not just SMART objective setting. SMART was a methodology of a performance management. And within that methodology, objective setting SMART was one of the frameworks, one of the smallest tool that is going to be used. So whosoever has asked this question, actually he might have been referring to that SMART objectives and overall methodology. So SMART itself is a methodology. Similarly, OKR is a methodology. Similarly, balanced scorecard is a methodology. And once we all of us who have done MBA in earlier ages, we have already read management by objective. That management by objective was also a methodology. And within that methodology, objective setting was one of the process. Thank you so much, sir. वैसे आपकी तरफ आता हूँ सर।
स्टेइंग फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसलिए कि गोल्स जब भी हम अपने आप के ऊपर किसी चीज को बाउंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली इचिंग स्टार्ट हो जाती है कहीं ना कहीं जहां से कंपटीशन है। तो इस फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रहने के लिए क्या करें? अच्छा, एक तो सर जो मैंने पहले डिसिप्लिन वाला एक्रोनिम की बात की थी वो मैंने चैट बॉक्स में आई हैव एड्रेस टू जी एवरीबॉडी वो मैंने वहां पर सेंड कर दिया है। मिल गया जी। अच्छा देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, वो ब्रूसली ने एक दफा एक बात कही थी कि बी लाइक वाटर। ठीक है, व्हेन यू आर पोर्ड इनटू अ टी पॉट यू बिकम टी पॉट, व्हेन यू आर पोर्ड इनटू अ कप यू बिकम कप। ठीक है, आज हम जिस टाइम में बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी की एज है एंड थिंग्स आर सो रैपिडली चेंजिंग। हमारे से जो पहली जनरेशन थी ना सर, दे सॉ अ होल रेवोल्यूशन फ्रॉम नो इलेक्ट्रिसिटी टू स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो वो एक जनरेशन जो थी वो अपना उन्होंने एक रेवोल्यूशन देखा, बट इट वाज नॉट एज रैपिड एज टुडे। आज हम देखते हैं जी, एवरी नाउ एंड देन देयर इज अ न्यू जीपीटी इंजन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, चाइना ने अभी जो है वो चैट जीपीटी के अगेंस्ट लॉन्च कर दिया है। सो देयर इज अनदर रेवोल्यूशन। पहले हम गूगल से हेल्प लेते थे, आजकल चैट जीपीटी जो है वो कर रहा है। तो somebody was saying के people with, अब ये मैं खास टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस या एआई विल नॉट रिप्लेस द ह्यूमन कैपिटल। इट विल रिप्लेस द ह्यूमन कैपिटल नॉट अडेप्टिंग टू द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए, जब गोल सेटिंग के पर्सपेक्टिव में भी आप बात करेंगे तो मैंने जिस तरह पहले कहा कि सेट योर गोल्स मल्टी डायमेंशनली। ठीक है, और मल्टी डायमेंशनल के अंदर अपना एक जो टेक्नोलॉजिकल और एडवांस्ड या कंटेम्प्रेरी स्किल्स का जो एक है आपका डायमेंशन, उसको लाजमन ऐड करें कि आपको अपने आने वाले दिनों में किन टेक्नोलॉजीज के साथ ऑपरेट करने का टाइम मिलेगा, और उसके साथ आपने खुद की अपनी अडेप्टेबिलिटी को कैसे डेवलप करना है। अच्छा, अब फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी तो है व्हाट टू डू, नाउ हाउ टू डू इट वाली बात यह है सर कि बीइंग फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल इज अ कॉन्शियस चॉइस, जो आपको खुद फैसला करना है कि मैं जो है वो अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल रहूंगा विद द स्टफ गोइंग ऑन अराउंड मी, और मैं चीज़ों को अडेप्ट करूंगा या फ्लेक्सिबल रहूंगा। देखें, आप नहीं करना चाहते हैं, वो फिर वही बात है वो जो इकबाल ने कहा था कि आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो वो जितना आप अड़े रहेंगे अपने पुराने मामलात के ऊपर, और आज की जो कंटेम्प्रेरी आपकी चेंज मैनेजमेंट की फिलॉसफी भी जो कहती है, तो चेंज मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट बीइंग फ्लेक्सिबल एंड बीइंग अडेप्टेबल। आपका ओडी का पूरा कॉन्सेप्ट, चेंज मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट जो एचआर में फॉलो होता है, इट्स अबाउट बीइंग फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। ठीक है, अगर ये नहीं आप कर सकते हैं तो देन यू शुड बी रेडी टू फेस सम डिजास्टर एट सम पॉइंट इन टाइम, मे बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ। सो ये आपको कोई सिखा नहीं सकेगा सर कि आपको इस तरह से फ्लेक्सिबल होना है कि जी आप नॉर्थ ईस्ट में 2500 कदम चलेंगे तो आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। नो, टुडे एट दिस पॉइंट इन टाइम यू हैव टू टेक अ कॉन्शियस चॉइस कि मैं अपने जो जहां पर मैं मतलब अपने आप जो मेरी एग्जिस्टिंग स्किल सेट है या जो मेरा एग्जिस्टिंग वे ऑफ वर्किंग है, आई विल मेक इट फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट वट एवर इज कमिंग अप। ठीक है, और ये आप इसको गोल सेटिंग में अप्लाई कर लें, आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर लें। आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ कॉन्शियस एंड अ साइकोलॉजिकल चॉइस, जो आपको खुद फैसला करके तो आगे लेके चलना है। Probably a mentor or a teacher or a coach can guide you to do it, but once again, it is you who has to take the decision and act likewise. थैंक यू भाई साहब। एक बड़ी पुरानी कहावत थी कि जब आप किसी मकसद से कोई सफर इख्तियार करते हैं और दरमियान में मुश्किलात आती हैं और आपके डावाडोल होने शुरू हों, तो आप उस मकसद को याद कर लिया करें कि स्टार्ट क्यों किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को फ्लेक्सिबल और कंसिस्टेंट रखने के लिए कि आप उस चीज पे फोकस करें कि ये जर्नी है क्यों। आपके गोल्स जब आप सेट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसमें हर कहीं कोई ना कोई ग्रोथ होती है। जैसे वैसा साहब ने और मेरे साहब दोनों ने कहा कि पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को मिक्स करना हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबल, और मेरे ख्याल में जैसे भी कहा कि आपने खुद करना है, और उसके लिए एक टिप ये है कि आप उस गोल को याद रख लिया करें कि आपने सेट क्यों किया था। अमजद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक क्वेश्चन है सादिया खान साहिबा का, हाउ टू बी फुली ऑन ट्रैक without distraction and maintain self discipline when there are number of factors causing ups and downs। उबैद ने बहुत अच्छी तरह इस चीज को किया, बट सादिया ने उसके बाद क्वेश्चन किया, आप
का एचआर का एक्सपीरियंस एक अपना मतलब एक जिंदा मिसाल है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाउ टू बी फुली ऑन ट्रैक विदाउट डिस्ट्रैक्शन एंड मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन वेयर देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अप एंड डाउन्स इन लाइफ। You see, ये तो हमने we all have witnessed 2020 से onward कोविड, इससे बड़ी डिस्ट्रप्शन तो हमने नहीं देखी आज तक, एटलीस्ट हमारी वाली जनरेशन है। दिस वाज द डिस्ट्रप्शन दैट नेवर विटनेस्ड अस बिफोर, पर अल्लाह का शुक्र है वी सेल इट थ्रू, गुजर गए। सो व्हाई डिड एंड हाउ कम वी एज पाकिस्तानी सेल इट थ्रू? बिकॉज ऑफ द resilience. So every professional, whether that is HR or a finance or any part in the corporate world, we need to know how to become more resilient. And to become more resilient, obviously हमारा जो subconscious है उसको we need to be more educative, we need to be more learned, proactively we need to foresee and read things so that we become more learned in terms of that subject, and in return of that, whenever there is going to be any disruption right and left से जो आती है, we will be resilient to respond back. Again ये तो होता है, and जो flexibility and adaptability की बात हो रही है, ये तो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट के अंदर दिस इज एवरी डे एक्चुअली काइंड ऑफ अ डायलेमा. We all witness every second day there might be a policy change in the government rules and regulation. Every second day there is a new technology which is coming and which is disrupting. And अभी जो उबैद बात कर रहे थे, डीप सीक कहाँ से चाइना उठा and they created another AI kind of a solution जो चैट जीपीटी का से भी maybe 10 times आगे है. Now what has impacted us? Earlier we were all Google user. 2 साल से we trained us to use ChatGPT for our solutions. Now we need to train us to use this DeepSeek, which is another AI-based solution, to get things done on a more faster basis and to cover more scope, which earlier was not being catered. So all these external disruptions are there and they will remain there, and they're going to be more fastened up going forward. So the only thing which is going to save us and make us still relevant and disciplined is to make us more resilient, is to make us more learned, is to make sure that we remain relevant to the business context, to the environmental context. If not moving ahead of the curve, at least we should be chasing the curve. And that is where, and that is how we will remain relevant and again, still controlling us moving forward. So it is all about resilience. थैंक यू सो मच। वैसे एक क्वेश्चन है सईद अहमद साहब का, सईद अहमद जंदन साहब का, कैन द फील्ड स्विच इटसेल्फ इज अ स्मार्ट अप्रोच इन 2025? फील्ड स्विच यानी मैं इसे जो समझ पाया हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली एक चॉइस ली कि जी आपने फॉर एग्जांपल यू विल बी अ फाइनेंस प्रोफेशनल, बट ड्यूरिंग द जर्नी यू फाउंड आउट कि जी मतलब मुझे एचआर में काम करना है या सप्लाई चेन में काम करना है. Is that so? योर करंट evaluating your current skills और उसके बेस पे डिसीजन लेना. एग्जैक्टली ये जो आप कह रहे हैं. इसकी मैं पर्सनल एग्जांपल खुद हूँ, ठीक है. सो आई एक्चुअली ग्रेजुएटेड विद मेजर्स इन फाइनेंस ड्यूरिंग माय एमबीए, एंड व्हाइल आई वाज इन द कोर्स ऑफ कंप्लीटिंग माय कोर्स वर्क, तो देन वंस अगेन द रोल ऑफ मेंटोर, मैं बार बार इस चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ. सो कनेक्टिंग बैक विद माय मेंटोर्स एंड सीकिंग देयर गाइडेंस. Somebody guided me कि यार HR में तुम you can perform a little more a little well than finance. तुम्हारा जो है वो सारा aptitude है, this can be helpful. And I changed my field. I took additional courses and I then qualified as an HR professional. I qualified as an HR graduate from a university. और इसके अलावा मैंने बहुत सारे अपने कोलीग्स को भी देखा who went for an engineering degree and from an engineering background over 5-6 years experience they switched their fields. देखें, ये फ्लेक्सिबिलिटी की एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है, इंतहाई खूबसूरत एग्जांपल है, एंड इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड कि आप जब किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक बड़ा उसमें ना क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो फैक्टर ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से ना आए कि यार अच्छा मुझसे ये नहीं हुआ तो चलो मैं ये करके देख लेता हूं, ठीक है, और मुझसे ये भी नहीं हुआ तो चलो अब मैं ये करके देख लेता हूं. सो इवेंचुअली अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी तो यू विल एंड अप बीइंग अ जॉब और अ प्रोफेशन हॉपर. दैट इज नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड. आप जब एक फील्ड में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये फील्ड आपके लिए ठीक है, आप काम भी कर रहे हैं, हाउएवर आउट ऑफ योर क्यूरोसिटी और आउट ऑफ योर लर्निंग एप्टीट्यूड अगर आप अपना फील्ड स्विच करना चाहते हैं
तो यस, आई टोटली एग्री कि आपको उसमें स्विच करना चाहिए, आपको उसमें भी एक्सेल करना चाहिए। बट ये एक जनरल मैंने एक एप्टीट्यूड देखा है कुछ लोगों में कि वो एक फील्ड में काम नहीं हुआ तो चलो दूसरा कर लेते हैं, यानी आधा आधा काम छोड़कर अगला काम शुरू करना इज नॉट अप्रिशिएटेड। जब आप एक काम मुकम्मल कर लें तो फॉर योर ओन लर्निंग एंड फॉर योर ओन ग्रोथ, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू एंड इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, गो फॉर इट। थैंक यू सो मच। शफक साहिबा कहती है, मिस्टर अमजद इकबाल said in the broader context is how to develop such culture when national culture is so fragmented and toxic in Pakistan. Beyond my scope, but let me try at least address the piece which is corporate side. देखें how many of us, as for example maybe HR side or leadership side, have developed formal processes and are being followed religiously in a disciplined manner. Number one, do we share in the beginning the next year full strategy as a transparent document where we set that these are going to be our core objectives for 2025, and these are some of the themes that we will be following to reach out to these objectives. So this strategy paper has to come out from the CEO, should go to the complete organization to the nth level, so that everybody must read that what is going to be our strategy in 2025. Now, as a religious or a disciplined manner, क्या हमारे लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये इशू करती हैं? अगर नहीं करती हैं तो जाहिर है हम पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, समथिंग विच इज इन माई कंट्रोल. सी लुक, in my control, my company is in my control. As a HR, as a CHRO, my company is my scope and that company is within my control. So I can reach out to CEO, I can influence CEO, I can get it drafted, I can get it pushed. So as a CHRO, this is my responsibility that this document has to go out as a strategy paper addressing to all the employees. अगर हम में से वो कंपनीज जो नहीं करती हैं तो forget about पाकिस्तान. इसका मतलब है कि हम एज ए HR अपनी कंपनी के अंदर ये वाला काम नहीं करें. सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नंबर वन. नंबर टू, क्या मेरी कंपनी के अंदर थ्रू अ फॉर्मल प्रोसेस, एंड इट इज नॉट बाय द HR, it is by the line management. Formal objectives are defined in the beginning, and obviously over a period of time they get changed. Maybe 30, 40, 50% of the total objective get changed over a period of time. But do we do this exercise in the first month, maybe spending 1 day or 2 day outside or in office to make sure that we have the defined objective? At least we have visibility कि हमने क्या करना है. अगर हम नहीं करते तो again we are missing the discipline piece, which is the culture piece, and obviously we will not end up having the right kind of a solution. Moving on, do we do that conversation dialogue जो मैंने शुरू में बात की थी? Because अगर वो नहीं है, as a culture नहीं है, as a regular मैं उसको responsibility नहीं समझता अपनी टीम के साथ करने का, and occasionally कर लेता हूँ, तो no, then this is not the right way to move forward. There has to be, I need to understand this is my responsibility and this is my team member's right to engage him or her into dialogue. अगर मैं ये नहीं करता, again as a HR I am missing, and as a HR I am missing on my responsibility, because I need to make sure that all my line management are learned, educated, and embrace this practice in terms of getting into dialogue on a regular basis. अगर नहीं हम करें तो इसका मतलब है again I'm missing. So there is a list goes on. There are 6-7, by the way, there are 6-7 checklist जो कि हर organization which want this performance and objective to be more valuable for the company and for the company's business, उनको ये 6-7 practices अपने यहाँ embed करनी है. And that is the only way forward to move, take the company move forward. Otherwise, हम अगर क्रिप करेंगे कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा, कहीं और नहीं हो रहा, तो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं. This is where a leader's responsibility. Leader का काम वहां होता है जहां पे चीजें नहीं हो रही होती हैं. जहां पे चीजें हो रही हों वहां लीडर नहीं होता, वहां मैनेजर होता है. So we need to be clear. Leadership is not about leadership is a choice, and then there's a cost attached to the leadership. ये easy going चीज नहीं है. Easy going is a managerial job. कि नहीं हो रहा तो चलो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो then आपके अंदर से वो leadership को trigger आना चाहिए कि now I need to make sure that it happens. Because leadership वो जो चीज नहीं हो रही होती है और वो relevant होती है, उसको करने के लिए उसकी responsibility होती है. तो as a leader dealing with all the odds is the basic thing. उसके अलावा तो आप leader हो ही नहीं सकते.
तो अगेन क्वेश्चन तो उन्होंने लाइट मोड में पूछा था, मैंने जरा सीरियस आंसर कर दिया, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट। सर आपने बहुत अच्छा आंसर किया, जरूरी था ये चीज। लास्ट क्वेश्चन आज का वैसा आपके, जी जी आप प्लीज प्लीज ऐड करना चाह रहा था, देखिए सर। जब टॉक्सिसिटी की बात होती है कि देयर इज टॉक्सिसिटी अराउंड अस, तो वी हैव अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड वी हैव अ सर्कल ऑफ कंसर्न। ठीक है, जो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, यानी जहां पर हम एज एन इंडिविजुअल कुछ कंट्रीब्यूट करके वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हमें उसके ऊपर यानी कंट्रोल है हमारा, और हम उसके अंदर कुछ रन टाइम पे कुछ वैल्यू कुछ पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। स्टे कंसर्न्ड विद दैट, उसके ऊपर फोकस करें। वहां पर आप जो है ना वैल्यू ऐड भी कर सकेंगे। और जो आपका सर्कल ऑफ कंसर्न है ना, जहां पे यानी आपकी कोई जहां डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में नहीं है, और जहां पर आप सिर्फ एक सजेस्टिव रोल में हैं, डिसाइसिव रोल में नहीं है, उसके बारे में आप अगर ना सोचें तो वो ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि उससे आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा नेगेटिवली। दूसरी बात, जहां तक हम बात करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, देखें सर, हम एज इंडिविजुअल्स एंड एज अ सोशल कंपोनेंट ऑफ आवर सोसाइटी, हम लोग अपनी ज़ात के जिम्मेदार हैं। हमें अल्लाह ताला ने मुहतसिब बनाकर नहीं भेजा दुनिया में, हमें अल्लाह ताला ने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बना के भेजा है। तो मेरा काम नहीं है कि मैं रोड पे जाके लोगों को ट्रैफिक सेंस सिखाऊं। मेरा एज एन इंडिविजुअल सोशल कंपोनेंट के तौर पे या एज अ सिटीजन मेरी ये जिम्मेदारी है कि जब मैं सड़क पर जाऊं तो आई शुड बिहेव रैशनली एंड आई शुड बिहेव एथिकली। मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि सर हमें अपनी दुनिया और दूसरों की आखिरत की फिक्र है। इस चीज से हमें बाहर निकलना होगा, और थोड़ा सा ये देखना होगा कि जब हम बाहर निकलें तो हम अपनी जात की बेहतरी और अपनी जात का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी उसको इंश्योर करें। बाकी हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको छोड़ दें। अगर पूरी सोसाइटी में हर बंदा अपनी अपनी जात की पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करनी शुरू कर दे, तो आई थिंक द सोसाइटी विल इटसेल्फ बी इम्प्रूविंग बिग टाइम। सो जस्ट लिटिल एडिशन। थैंक यू सो मच, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। अब जैसा आप सर एक क्लोजिंग मैसेज फॉर आवर ऑडियंस रिगार्डिंग द टॉपिक। So, absolutely, this is our collective responsibility, and especially those who are part of the HR side or attending this webinar. This is as a HR our collective responsibility to create, to number one, conceive, design, and embed this culture within a company around performance management or for the performance management. This is our collective responsibility, but this has to be triggered by us as a HR. There is no other function responsible primarily. It is us who has a direct responsibility. थैंक यू सो मच। उबैद साहब, एक क्लोजिंग मैसेज फॉर आवर ऑडियंस। अच्छा सर, माय क्लोजिंग मैसेज इज वंस अगेन टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड ऑन योर लाइफ गोल्स। ठीक है, और वो डिसिप्लिन का मैंने एक एक्रोनिम अपने ऑडियंस के साथ शेयर भी किया है। मैं अपने तजर्बे से शेयर कर सकता हूँ। डिसिप्लिन इज योर की टू सक्सेस एंड प्रोग्रेस इन योर लाइफ। सो माय क्लोजिंग रिमार्क्स, माय क्लोजिंग मैसेज, माय क्लोजिंग नोट इज टू बी डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया, आप लोग आए और बहुत वैल्यूएबल डिस्कशन है। ऑडियंस आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम वेबिनार नंबर 42 के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह Thank you हाफिज। very much, everyone. थैंक यू सो मच।